Hello students, I Harshita Parekh welcomes you again in my online study classes. I am back here with the topic coordination compounds. This is third lecture of the coordination compound. In previous section, we have discussed about the coordination compounds. What are the coordination compounds? About the double salt, about the additional products, उनकी बात हमने करी थी. In second lecture, we have discussed about the Werner theory. That is the first theory which explains the structure of the coordination compound. Now, in today's class, we are talking about the ligands here, the types of ligand. उसकी बात हम आज की क्लास में करेंगे. So, let us start today's class. चलिए, उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ. The coordination entity or the coordination sphere. Right, the molecule which is written in the square bracket को आपके पास में coordination entity होती है and if there is any charge present on the sphere तो उस charge को balance करने के लिए बाहर कोई ion जो है वो आपके पास में आएगा that is termed as counter ion. इसको counter ion जो है वो बोलते हैं. This is the coordination sphere and this is the counter ion here, right? यहाँ metal होता है which bond with the ligand here. जितने भी number of ligands हैं वो यहाँ पर जो है वो लिखे हुए होंगे. Suppose that 6 ligands are attached here with the metal. तो Ml6 टाइप का जो है वो कोई cationic complex है. To balance the charge बाहर ionic species present होगी. That is the ionic sphere or the counter ion, right? This is counter ion, this is metal, ligand and this species which is written in the square bracket. ये आपके पास में जो है वो क्या होगा? This will be the coordination sphere. ये coordination sphere है, ये ionic sphere है और the counter ion. In the coordination sphere metal होता है और ligand जो है वो present होते हैं. Now, in today's lecture we are starting that ligands. What are the ligands and the types of ligand की हम जो है वो आज की क्लास में बात करेंगे. चलिए ligand की अगर मैं बात करूं, ligand these can be molecules, these can be neutral atoms, these can be the negatively charged species, negatively charged, right? कोई भी आपके पास में जो ligand है, it can be molecule, it can be neutral atom और it can be the charged species. पॉजिटिव चार्ज ligand भी जो है वो होते हैं. तो निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो है वो ligand हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है. बेसिकली दीज आर द लोन पेयर और द इलेक्ट्रॉन पेयर बोलें ज़्यादा बढ़िया है. इलेक्ट्रॉन pair donor centers. These are the electron pair donor center है ये जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट यहाँ पर कर रहा है. डोनर है, इट मीन्स एक्ट एज द लुईस बेस. लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्ट एज लुईस बेस. लुईस बेस की तरह जो है वो यहाँ पे काम करते हैं. इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द लाइगेंड, दीज आर द स्पीसीज विच आर डोनेटिंग हेयर इलेक्ट्रॉन टू द मेटल. मेटल आपके पास में इन द केस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये लुईस एसिड होते हैं while the ligands are the Lewis base here. ओके, तो ये कैसे हैं? दीज आर लुईस बेस हैं, राइट? ओके, नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट द ligand. At least one lone pair should be present here. At least one lone pair should be present here on the ligand. Ligand पे कम से कम एक lone pair तो present होना ही चाहिए. The lone pair, by the donation of the lone pair, ये आपके पास में coordinate bond का formation करते हैं with the metal. Ligands form the coordinate bond with the metal here to form the coordinate complex. And in the coordinate complex, coordinate bond की बात करें तो वो water के अंदर dissolve जो है वो नहीं होते हैं. This is the reason कि coordination sphere, right, or the coordination molecule or the coordination compound will not lose their identity in the aqueous form also. While अगर आप इस compound को, इस complex को water के अंदर dissolve
डिसॉल्व करवाएं तो सिर्फ और सिर्फ काउंटर आयन आयोनाइज होगा। ये जो स्फीयर के अंदर प्रेजेंट जो भी मॉलिक्यूल है उनका आयोनाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो आपके पास में वाटर में जो है वो आयोनाइज नहीं होते, वाटर से तो नहीं टूटते। दैट्स व्हाई दिस entity will be remain same in the aqueous form also. No, so this is about the ligand जो कि molecule हो सकता है, it can be atom, it can be the charged species. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर सेंटर है ये, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। लोन पेयर जो है वो ये क्या करता है? डोनेट करता है, एंड बाय द डोनेटिंग द लोन पेयर इट एक्ट एज द लुईस बेस। लुईस बेस की तरह जो है वो आपके पास में एक्ट करेगा लाइगेंड। वाइल द ओनली केस वेयर सेंट्रल मेटल एटम दैट इज CMA, सेंट्रल मेटल एटम विल एक्ट एज द लुईस एसिड। इसके अलावा आपके पास में कोई केस नहीं है जहाँ पे कि मेटल एटम जो है वो बिहेव कर रहा है लाइक ऑफ acid. In the coordination compound, metal behave as the lone pair acceptor, electron pair acceptor, and the electron pair acceptor species are the Lewis acid here. ये Lewis acid है, जबकि ये जो है आपके पास में क्या है? ligands are the Lewis base here. कम से कम एक जो लोन पेयर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होना ही चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है लाइगेंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ लाइगेंड। लाइगेंड के जो है वो टाइप्स की बात करते हैं। ऑन डिफरेंट ऑफ द बेसिस वी कैन क्लासिफाई द लाइगेंड्स। फर्स्टली वी कैन क्लासिफाई द लाइगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे जो है वो लाइगेंड को क्लासिफाइड किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वी कैन ऑल्सो क्लासिफाइड द लाइगेंड्स। तो इसी क्लासिफिकेशन की टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स की बात करते हैं। कीप वॉचिंग। यस, आगे बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ लाइगेंड। Types of ligands can be further classified on the different bases, and the first basis on which we are going to classify the ligand वो आपके पास में होगा on the basis of charge. The first category is on the basis of charge we can classify the ligand. इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी भी लाइगेंड को क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट देखते हैं, इट कैन बी न्यूट्रल लिगेंड, negative ligand or the negatively charged ligands. And the third one is positively charged ligands or the positive ligands. Now, by the name we can easily understand that here is no charge present on the ligand. If there is no charge present on ligand, तो ligand आपके पास में न्यूट्रल होगा। if the charge negative charge, if ligand contain negative charge and the ligand contain positive charge, तो इस तरह से हम जो है वो on the basis of the charge present on the ligand को डिवाइड कर सकते हैं न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ligand के अंदर। चलिए एग्जाम्पल की बात करें, न्यूट्रल ligand की बात करते हैं। जस्ट लाइक NH3 अमोनिया। अमोनिया एज अ न्यूट्रल लाइगेंड, लाइगेंड है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। H2O that is aqua, this is also the neutral ligand. कार्बोनल की बात कर लीजिए, CO कार्बोनल, ये भी आपके पास में कैसा है? These are the examples of the neutral ligand, ligand with no charge. ligand तो है, देखिए on nitrogen there is a lone pair, oxygen contain टू लोन पेयर हेयर, और यहाँ पे भी एक एक लोन पेयर जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास होता है। इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ CO, दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड O
ऑक्सीजन हैज ओनली वन लोन पेयर हेयर, ये आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन आप मान सकते हैं. इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है. निगेटिव चार्ज का मतलब एक जो है वो लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट होगा ऑन द कार्बन एटम. नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट द डोनर साइट हेयर. देखिएगा, इट विल बी द डोनर साइट हेयर, कार्बन विल बी द डोनर साइट हेयर. ऑक्सीजन डोनर साइट यहाँ पर नहीं है इन द कार्बोनिल. क्यों नहीं है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, या मैं कह दूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन वो कम है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, या आप कहें इट हैज़ ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, इट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर जो है वो और डोनेट नहीं करेगा. वाइल इट इज़ निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, अ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द कार्बन. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर कम है तो ये इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन उतना नहीं रखता है. जब इलेक्ट्रॉन से उतना ज़्यादा जो है वो अफेक्शन नहीं रख रहा, इट मीन्स इट कैन ईजिली डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेयर. इस तरह से इन द कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन विल बी द डोनर सेंटर, जबकि लोन पेयर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास प्रेजेंट है. नेक्स्ट बात करते हैं द नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स की, दैट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. कोई भी आपके पास में जो है वो हैलाइड हो सकता है. X माइनस, दैट कैन बी क्लोराइड, इट कैन बी ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, कुछ भी हो सकता है. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, राइट. These can be the negatively charged ligands. Other than that, OH minus, that is hydroxide ion, Cn minus, cyanide, right. These are the examples with negative charge. माइनस माइनस सबके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. ऑल द हैलाइड्स आर द नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स. इसके अलावा ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, सॉरी, साथ में साइनाइड है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स. नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज. NO प्लस एंड NH2, NH3 plus, that is nitrosonium and hydrazinium ion है ये. NO plus and the NH2, NH3 plus, these have the positive charge. साथ ही साथ में यहाँ पर जो है वो लोन पेयर भी होंगे on the nitrogen that will behave like the donor center, लुईस बेस की तरह behave करेंगे. और ये आपके पास में हुए the positively charged ligands. This is the टाइप ऑफ द लाइगेंड ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर साइट्स और द डोनर एटम. डोनर सेंटर कितने हैं, डेंसिटी कितनी है, उस बेस पर बात करते हैं. सो कीप वॉचिंग. यस, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर एटम्स or the donor centers. How many donor centers are present in ligand? According to that, we can classify the ligands again. That is monodentate, bidentate, tridentate, tetradentate, pentadentate, hexadentate, मतलब कि polydentate आप बोल सकते हैं. ये आपके पास में है on the basis of donor atom ligands के टाइप, right? देखिएगा, इन्हें डिस्कस करने से पहले एक टर्म जो है वो लेते हैं, that is denticity. What is denticity? Denticity. What is denticity? ये आपके पास में जो है वो the number of the donor atoms, the number of the donor centers present in the ligand, वो उसकी denticity होती है. अगर मैं बात करूं what is denticity? Denticity is the number of the donor centers, number of the donor atoms present in ligand. Ligand में present number of donor centers या number of donor atoms present in ligands. ligands में कितने जो है वो donor center present है, कितने donor atom present है, that will be the denticity of that ligand. And it can be monodentate, bidentate, tridentate या आप कहते हैं polydentate. The ligand can be मोनोडेंटेट. चलिए पहली बात हम करते हैं
मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट ligand की बात करते हैं. What will be the monodentate ligand? If there is only one, mono means one. If the denticity of the ligand is 1, it means only one donor center is present here. When there is only one donor atom or the one donor center present in ligand के पास सिर्फ एक डोनर सेंटर है, या आप ये भी कह सकते हैं डेंटिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द ligand एंड द मेटल. ligand मेटल के साथ कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, वही आपके पास में डेंटिसिटी होगी ligand की, राइट. द नंबर ऑफ द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द ligand एंड द मेटल हेयर. कोई भी ligand मेटल के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग हेयर इन बिटवीन द ligand एंड द मेटल. मेटल के साथ ligand कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो उसकी डेंटिसिटी होती है, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ द डोनर सेंटर. जितने डोनर सेंटर होंगे वो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे और उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो होगा. दैट इज व्हाई डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ द डोनर सेंटर्स, या आप कह दें नंबर ऑफ द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द ligand एंड द मेटल एज वेल. चलेगा. मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है, व्हेन देयर इज वन डोनर सेंटर, व्हेन देयर इज वन डोनर एटम प्रेजेंट इन द ligand, वो होगा मोनोडेंटेट. एग्जाम्पल की बात करते हैं. If we are talking about the example H2O, NH3, Cn माइनस, साइनाइड ले लीजिए, फ्लोराइड ले लीजिए, क्लोराइड ले लीजिए, ब्रोमाइड ले लीजिए, कोई भी आप जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं, हैलाइड, राइट. चलेगा. If we just talk about NH3, अमोनिया की बात करते हैं. NH3, it has one lone pair. Nitrogen has one lone pair here and it can donate the lone pair. Lone pair donate करके bond का formation जो है वो कर सकता है, और ये behave करेगा like of Lewis base. By donating the electron, अमोनिया में ये जो है किस तरह behave कर रहा है, it is behaving like of Lewis base. So ये क्या हुआ, ligand हुआ. How many donor centers are here? Only one donor atom is present here. सिर्फ एक donor site है, इसीलिए NH3 ammonia is monodentate ligand. When the denticity is 1, monodentate ligand. One donor site, monodentate ligand. Clear? H2O की बात करते हैं. देखिएगा, in H2O there are two lone pairs present on oxygen atom, लेकिन at a time only one lone pair can be donate. ये यहाँ पे एक ही lone pair जो है वो डोनेट करके मेटल के साथ में जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. तो इसलिए H2O is also monodentate ligand. इसके पास में दो जो है वो क्या प्रेजेंट है, दो जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन डोनेट कितना करता है, ओनली वन. व्हेन देयर इज ओनली वन डोनर साइट, व्हेन देयर इज ओनली वन डोनर एटम, जब ligand मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड होगा. इन द Cn माइनस, F माइनस, इन सब में भी दिस कंपाउंड हैज द नेम एक्वा. ये आपके पास में जो है वो अमाइन है. दिस इज साइनाइड एंड दिस इज फ्लोराइड. यहाँ पर आपको जो है वो एक टेबल जो है वो शो कर रही हूँ मैं, इन विच यू कैन चेक द लिस्ट. दिस इज द लिस्ट ऑफ ligand. ligand की एक लिस्ट जो है वो शो कर रही हूँ, बिकॉज ऑल द ligands आर नॉट पॉसिबल हियर टू डिस्कस. दैट्स वाई एक लिस्ट जो है वो आपके सामने जो है वो शो हो रही है, जिसमें कि ligand जो है वो बताए हुए हैं कि कौन सा ligand है, उस पर कितना चार्ज है और उसकी डेंटिसिटी जो है वो कितनी है. चलिएगा, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट की. कीप वॉचिंग. यस, नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप, दैट इज बाय और द डाइडेंटेट लिगेंड. इसको बाइडेंटेट भी बोल सकते हो या इसको डाइडेंटेट भी बोल सकते हो. व्हेन देयर आर टू डोनर साइड्स, व्हेन देयर आर टू डोनर सेंटर्स प्रेजेंट इन द ligand, देन द ligand विल बी नेम्ड एज बाइडेंटेट लिगेंड. ओके, चलिए देखते हैं. बाई और डाइडेंटेट मीन्स देयर आर टू डोनर साइड, या ligand जो है वो मेटल के साथ में टू बॉन्ड्स का जो है वो फॉर्मेशन करेगा. हैव अ लुक. एग्जाम्पल्स की बात करते हैं.
One more thing I just want to clear here, monodentate ligand can be named as unidentate, or monodentate, bidentate और didentate ligands. Clear? चलिए एग्जाम्पल की बात करें, that is E and ethylene diamine. एथिलीन डायमीन की बात करूँ, उसका स्ट्रक्चर देखिएगा किस तरह से होगा, CH2 अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता इट विल बी इथाइलिन और द इथिलीन डायमीन, डबल बॉन्ड हटाइए, उसकी जगह NH2 जो है वो आप अटैच कर दीजिए, राइट. दिस इज इथिलीन डायमीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन और द इथाइलिन डायमीन. Have a look here. One lone pair are present here on the nitrogen in the nitrogen atom respectively. So one donor center and another donor center, it can form two bonds with the metal. यहाँ पे दो डोनर सेंटर हैं, यहाँ दो जो है वो डोनर एटम प्रेजेंट हैं, ये मेटल के साथ में दो बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं. सो दिस इज इथिलीन डायमीन फॉर्मिंग बॉन्ड विथ मेटल, और ये हमारे पास में जो है वो क्या है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ bidentate ligand, that is ethylene diamine. और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. यस, नेक्स्ट इज ऑक्जेलेटो की बात करते हैं. ऑक्जेलेटो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्जेलेटो C2O4 2-. इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, इट हैज द स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, C2O4, राइट, C2O4. डबल इन द डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक निगेटिव चार्ज यहाँ, एक निगेटिव चार्ज यहाँ. हैव अ लुक हियर, निगेटिव चार्ज ये आपके पास में क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, मेटल को, एंड बिहेव एज अ लिगेंड व्हेन देयर आर टू डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड, तो वो बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो होगा. यहाँ डोनर एटम कौन है, डोनर एटम इज ऑक्सीजन हेयर, बोथ द डोनर एटम्स आर ऑक्सीजन हेयर. ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो डोनेट कर रहा है, मेटल को बिहेव कर रहा है एज द लोएस्ट बेस, राइट. दिस इज ऑक्जेलेटो, राइट. ये हुआ ऑक्जेलेटो की बात. चलेगा नेक्स्ट बात करें, डाइपिरिडीन ले लेते हैं. डाइपिरिडीन की अगर बात किया जाए तो देखिएगा, it has the pyridine has the structure something like this, right. ये है स्ट्रक्चर ऑफ pyridine. एक और pyridine जो है वो यहाँ अटैच करवा दीजिए. दिस इज अनादर pyridine molecule here, ये दूसरा जो है वो pyridine है. These are the two pyridine rings attached together, dipyridine है. नाइट्रोजन has one and one lone pair, ये रही आपके पास में दो डोनर साइड इन अ ligand. ये मेटल को अपना जो है वो क्या करेगी, लोन पेयर डोनेट करेगी. When there are two donor atoms present in the ligand, it will be the example of the bidentate or the didentate ligand. ये हुआ अबाउट द ऑक्जेलेटो एंड द डाइपिरिडीन. इसके अलावा जो है वो बात करते हैं ग्लाइसिनेटो. ग्लाइसिनेटो इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द बाइडेंटेट लिगेंड. ग्लाइसिनेटो है आपके पास में, ऑक्जेलेटो है, डाइपिरिडीन है. इसके अलावा जो है वो DMG एग्जाम्पल होता है बाइडेंटेट लिगेंड का. ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर अगर जो है वो देखी जाए, इट हैज द स्ट्रक्चर NH2 CH2 COO-. Have a look here, nitrogen is the donor side and the another donor atom is oxygen here. Here again two donor sides which can donate the lone pair or the electron pair to the metal and behave as the Lewis base. Lewis base की तरह behave कर रही है. metal के साथ दो जो है वो साइड से दो donor atoms donate कर रहे हैं, दो साइड से bond का formation हो रहा है. One is nitrogen, another one is oxygen here, and this is the further example, another example of the bidentate ligand. एक और जो है वो बात कर लेते हैं, that is, wait for a second, yes, next is DMG, that is dimethyl
ग्लायोक्सिम, डाइमेथाइल ग्लायोक्सिम, ग्लायोक्सिम CnOH, दिस इज द, यहाँ पर आपके पास में देखिएगा क्या होता है, दो जो है वो साइड्स होती हैं, डाइमेथाइल की बात कर रहे हैं, डाइमेथाइल ग्लायोक्सिम, दिस इज ऑक्सिम एंड दिस इज ग्लायोक्सिम हेयर, डाइमेथाइल, ये लीजिए डाइमेथाइल ग्लायोक्सिम, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DMG, डाइमेथाइल ग्लायोक्सिम का स्ट्रक्चर है ये। इन दिस कंपाउंड देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड नाइट्रोजन एटम हैव 2 लोन पेयर्स, एक लोन पेयर यहाँ इसके पास में है, एक लोन पेयर ही होगा ऑन 1 नाइट्रोजन, while there are 2 नाइट्रोजन एटम्स, तो दो जो है वो डोनर साइट वापस से प्रेजेंट है, एंड दैट टाइप ऑफ द ligand which have 2 donor sites are the example of the bidentate ligand. Now tridentate की बात करते हैं, keep watching. Yes, next is diethylene triamine. डाइथाइलिन ट्राइअमीन की अगर बात किया जाए तो देखिएगा CH2, CH2, NH2 and the NH2. This is ethylene diamine. ये क्या था? ये था ethylene diamine. That is EN, ethylene diamine. आपको बनाना क्या है? डाइथिलीन ट्राइअमीन बनाना है, तो देखिए NH2, CH2, CH2 and NH2 again. दिस इज 1 मॉलिक्यूल। चलिए ऐसा ही एक और जो है वो मॉलिक्यूल मैं यहाँ अटैच करवा दूं, दिस इज 1 and the 2 इथिलीन, राइट। तो डाइथाइलिन ट्राइअमीन जो है वो आपके पास में ये है, इसे चलिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, दिस इज NH2 here. Have a look, how many donor atoms are present here? Nitrogen has again 1 lone pair, तो एक इसको चलिए यहाँ लगा दीजिए, this is NH2. 1, 2 and 3, there are 3 donor sites. It means when there are 3 donor sites present in the same ligand, तो वो आपके पास में कैसा ligand है? This is tridentate. This is tridentate ligand. चलिए एक और ligand की बात करते हैं, that is इमिनोडाइएसिटेटो, इमिनोडाइएसिटेटो। इमिनोडाइएसिटेटो की बात कीजिए, ये रहा आपके पास में NH, डाइएसिटेट लेना है, that is CH2, CO minus and CH2, CO minus, right? Have a look, how many donor sites here? 1, 2 and 3. There are 3 donor sites, जिसमें से कि एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है. So this is about the tridentate ligand in which there are 3 donor sites present in the same ligand which can bind with the मेटल, राइट. मेटल को जो है वो लोन पेयर डोनेट करेगा. चले इसी तरह से जो है वो अगर मान लीजिए डोनर साइट हो 4 तो ये टेट्राडेंटेट होगा. अगर जो है वो डोनर साइट हो 5 तो पेंटाडेंटेट, डोनर साइट हो 6 तो हेक्साडेंटेट. सेम एज आप इनको पॉलीडेंटेट किट्स भी बोल सकते हैं, राइट. व्हेन देयर आर डेंटिसिटी इज मोर देन 1, एक से ज्यादा जो है वो डोनर सेंटर्स प्रेजेंट हैं, व्हेन द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड इज मोर देन 1, दैट कैन बी नेम्ड एज पॉलीडेंटेट लिगेंड. 2 है डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, हेक्सा. चलिए आगे वाले एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. टेट्राडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं. यस, नेक्स्ट इज tetradentate ligand. When there are 4 donor centers or the 4 donor atoms present in the same ligand, then the ligand will be tetradentate. चलिएगा बात करते हैं. अभी हमने लिया था डाइथिलीन ट्राइअमीन, अब हम ले लें ट्राइएथाइलीन टेट्राअमीन, राइट.
diethylene triamine, that will be the example of the tridentate, जबकि tetra का मतलब होता है 4 denticity. When the ligand has the denticity 4 तो वो tetradentate होगा, चलेगा. Triethylene tetramine is the example of the tetradentate ligand here. बनाते हैं, देखिए NH2 CH2 CH2 NH2, one ethylene molecule, CH2 CH2 NH2. This is one ethylene diamine. Diethylene triamine. हमें बनाना क्या है? ट्राइथाइलीन. ऐसे नीचे ले लीजिए, CH2 CH2 and NH2. रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, बाकी कुछ नहीं है. हैव अ लुक हियर. Ethylene diamine, diethylene triamine and the triethylene tetramine. Have a look at the donor centers. Nitrogen has a lone pair, this nitrogen and this and this. There are 4 nitrogen atoms which can donate the lone pair of electron, और 4 जो है वो donor site हैं, 4 nitrogen lone pair के साथ में present है. This is the example of the tetradentate ligand. नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, दैट इज नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो हेयर NCH2COO minus CH2COO minus and the triacetato. So this is mono di in the triacetato. Have a look in this molecule. Nitrogen has a lone pair while there are 3 oxygen sites which can donate the इलेक्ट्रॉन पेयर. तो कितने जो है वो डोनर साइट्स हुए? दीज आर द 4 डोनर साइट्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल. दिस इज द फर्दर एग्जांपल ऑफ द टेट्राडेंटेट लिगेंड. पेंटाडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं. यस, नेक्स्ट इज पेंटाडेंटेट लिगेंड. व्हेन द डोनर एटम्स आर 5, व्हेन देयर आर 5 डोनर साइट्स प्रेजेंट इन द लिगेंड, that will be the pentadentate. Example देखिएगा, that is ethylene diamine triacetato. Example is ethylene diamine triacetato. चलिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा. ethylene डायमीन ट्राइएसिटेटो की बात थी. लीजिए नाइट्रोजन से CH2COO माइनस एंड द CH2COO माइनस. CH2COO माइनस, दिस हैज द नेम एसीटेट. ये एसीटेट है, तो ये आपके पास में क्या हुआ? एथाइलीन डायमीन ट्राइएसिटेटो बनाना है. ये लीजिए एक और CH2COO minus. Now have a look here. How many donor sites are present here? 1. Nitrogen has 1 lone pair. Nitrogen has 1 lone pair. 1 donor site, 2 donor site, 3 donor site, 4 and 5. There are total 5 donor site, जिसमें से 2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, जबकि 3 ऑक्सीजन जो है वो आपके पास में डोनर साइट है. लोन पेयर इन द नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज अगेन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से इन द इथाइलीन डायमीन 1 2 3 ट्राइएसिटेटो के अंदर भी आपके पास में जो है वो कितने जो है वो डोनर सेंटर है? देयर आर 5 डोनर सेंटर एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पेंटाडेंटेट लिगेंड. हेक्साडेंटेट की बात करते हैं. यस, नेक्स्ट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड व्हेन देयर इज 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट इन द लिगेंड. चलिए बात करते हैं अबाउट द एग्जांपल, दैट इज EDTA ethylene diamine tetraacetato. This is ethylene diamine tetraacetato.
acetato, right? ETTA or the ethylene diamine tetraacetato is the example of the hexadentate ligand, और ये डायरेक्ट कई बार जो है वो पूछा जाता है एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड, या EDTA जो है उसकी डेंटिसिटी जो है वो पूछी जा सकती है। चलेगा, एग्जाम्पल EDTA, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, CH2 and the CH2, right? If this is attached with the double bond, it is ethylene. डायमीन की बात करनी है, ये लीजिए NH2 and the NH2 here, right? अब आपको इसको इससे बाइंड करवाना है, क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तब जा करके जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। Ethylene diamine, ethylene diamine tetraacetato means, have a look here, nitrogen form two bond and attach with the hydrogen and hydrogen as well, या hydrogen जो है वो replace है by the acetate CH2 COO minus CH2 COO minus CH2 COO minus and CH2 COO minus here। आप EDTA का स्ट्रक्चर डायरेक्ट याद करने की जगह आप जो है वो इसको पार्ट्स में याद करेंगे तो ज़्यादा सही है। इथाइलिन, डायमीन एंड द टेट्रा एसीटेटो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द EDTA, दैट इज हेक्साडेंटेट ligand। हैव अ लुक, 1 2 two donor sites are nitrogen here, two donor sites are nitrogen here, while 1 2 3 and 4 negative charge, again electronless species can donate the electron pair। तो 4 तो ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम है, जबकि 2 जो है वो नाइट्रोजन डोनर एटम है। Overall there are 4 donor sites and 4 plus 2 there are 6 donor sites present in the EDTA molecule, and this is example of the hexadentate ligand। इसी के साथ में हमारा डेंटिसिटी जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ द ligands कैन बी ऑफ स्पेशल टाइप, कुछ स्पेशल टाइप के ligands हैं, उनकी बात करते हैं। कीप वॉचिंग। यस, नेक्स्ट इज सम special types of ligands। Yes, firstly we are talking about the ambidentate ligand। Ambidentate ligand, if we'll just talk about the ambidentate ligands, these are the ligands where 2 donor atoms are present but only 1 donor atom can donate an electron pair with the metal at a time। Ambidentate कितना है यहाँ पे, those type of the ligands which have those types of ligands which have 2 donor atoms but only 1 donor atom can donate its electron pair to the metal। ligand 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, लेकिन एक बार में एट अ टाइम एक बार में सिर्फ एक ही जो है वो डोनर एटम मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, चलेगा। NO2 दैट इज नाइट्रो, इसकी बात करते हैं। हैव अ लुक हियर, एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये आपके पास में जो है वो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो कर सकता है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, ये यहाँ पे अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेटल को जो है वो दे रहा है। ओके, चलेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। इन द नाइट्रो NO2 की अगर बात करें, नाइट्रोजन कैन बी द डोनर सेंटर, अदर दैन दैट ऑक्सीजन कैन बी द डोनर सेंटर हेयर। ऑक्सीजन जो है वो भी आपके पास में डोनर सेंटर जो है वो हो सकता है। तो इन NO2 नाइट्रोजन कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, लेकिन
एक बार में सिर्फ एक ही डोनर एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, या तो नाइट्रोजन करे या तो ऑक्सीजन करे। दीज टाइप ऑफ द ligands which have two donor centers or the two donor atom, but only one donor atom can donate the lone pair of electron or can donate the electron pair with the metal, तो वो आपके पास में होते हैं एम्बीडेंटेड। दो डोनर सेंटर होते हुए भी एट अ टाइम ओनली वन डोनर सेंटर कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन पेयर। हेयर नाइट्रोजन जो है वो आपके पास में डोनर सेंटर है, वाइल इन दिस कंडीशन ऑक्सीजन इज द डोनर सेंटर, राइट। दिस टाइप ऑफ द ligands आर टर्म्ड एज एम्बीडेंटेड ligands। देखिएगा, इसको पहले बोला जाता था नाइट्रो एंड द नाइट्रिटो, राइट। नाइट्रो एंड द नाइट्रिटो को जो है वो पहले बोला जाता था। IUPAC की नई रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इट विल बी टर्म्ड एज N नाइट्रिटो एंड द O नाइट्रिटो। अब दोनों को ही नाइट्रिटो जो है वो बोला जाता है इफ द डोनर सेंटर इज N। नाइट्रोजन तो नाइट्रिटो से पहले N लगाया जाता है, वाइल इफ द डोनर सेंटर इज ऑक्सीजन तो आपके पास में डोनर सेंटर जो है उसको पहले इंडिकेट किया जाएगा बिफोर द नेम, राइट। और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बस नेक्स्ट बात करते हैं of cyanide, that is Cn minus। Have a look in the cyanide group Cn की अगर बात किया जाए, there can be the two centers, carbon and nitrogen both can share the electron pair with the metal। अगर मान लीजिए कार्बन जो है वो आपके पास में एज ए डोनर साइड काम कर रहा है, दिस कंपाउंड हैज द नेम साइनेटो। साइनेटो बोला जाएगा, वाइल इफ द डोनर सेंटर इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगर डोनर सेंटर है तो उसको बोला जाएगा आइसो साइनेटो। इन द साइनाइड दोनों ही आपके पास में कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ कैन बी द डोनर सेंटर, बोथ कैन बी द डोनर एटम, बट at a time only one, either carbon or nitrogen can share the electron pair with the metal। अगर metal को electron pair nitrogen share कर रहा है तो isocyanate नाम होगा, while if the electron pair is shared by the carbon to the metal it has named as cyanato। जो ligand है उनके जो है वो नेमिंग आपको याद करने पड़ेंगे, इसके लिए जो है वो टेबल जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। द नेमिंग ऑफ द ligand आपके पास में IUPAC नेमिंग और द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काम आएगी, इसलिए आपको जो है वो ligands की नेमिंग, उन पे चार्ज, उनका स्ट्रक्चर जो है वो लर्न करना पड़ेगा, जो कि आपको टेबल में जो है वो मिल जाएगा। सो हैव अ लुक हियर, साइनाइड द another example of the ambidentate ligand when there can be two donor centers but at a time only one center can donate it electron pair to the metal। इस तरह के ligands को बोलते हैं ambidentate ligand and the cyanide is the another example। इसका आजकल पहले इसके साइनो नाम जो है वो होता था, राइट, लेकिन according to the new recommendation of IUPAC it is named as cyanato and isocyanato। चलिए नेक्स्ट की बात करें, थायोसाइनेट की बात कर लेते हैं, दैट इज SCN। When the donor center is sulfur here in thiocyanate, this is thiocyanate here, ये थायोसाइनेट है। थायोसाइनेट के अंदर अगर मान लीजिए सल्फर जो है वो डोनर साइट है तो आपके पास पे इट विल बी थायोसाइनेटो, नेमिंग इसकी होगी थायोसाइनेटो, वाइल द नाइट्रोजन कैन बी द डोनर साइट हेयर। This is the bonding, nitrogen can be the donor site here and it will be named as isothiocyanato। सॉरी, ये स्ट्रक्चर्स 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग का जो है वो मैटर है, जहाँ पे आपको इनका स्ट्रक्चर जो है वो बनाना सिखाया जाता है। सो हैव अ लुक, सल्फर कार्बन जो है वो आपके पास में है, सल्फर दो बॉन्ड बना रहा है, इसके पास में जो है वो दो लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीजन का फैमिली का मेंबर है सल्फर, ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट हियर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6,
1 2 3 4 5 6 कार्बन 4 बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, एक जो लोन पेयर है अपना, ये जो है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। व्हेन द नाइट्रोजन इज द डोनर सेंटर आइसोथायोसाइनेटो, व्हाइल इफ द सल्फर इज द डोनर सेंटर हियर, बिकॉज सल्फर के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, इट कैन ऑल्सो शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद द मेटल, शेयर नहीं डोनेट कर सकता है, तो ये भी आपके पास में डोनर सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है, हो सकता है थायोसाइनेट एंड द आइसोथायोसाइनेटो। इस तरह से एम्बिडेंटेड लिगेंड भी कंप्लीट होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कीलेट लिगेंड्स। यस, now we are talking about the last type of the ligand, and that is chelate ligand or the chelate ligand। कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन चीलेट भी करते हैं। कीलेट ligands की जो है वो हम बात कर रहे हैं। What are the chelate ligands? When there are bi or the didentate ligand or polydentate ligands. In the case of bidentate ligand, in the case of polydentate ligand, आपके पास में जो मेटल के साथ में अटैच कर रहा है ligand, this is forming a ring, ring जो है वो बना रहा है। Just like अगर हम बात करें about the ethylene diamine की बात करते हैं, it has the name ethane 1,2 डायअमीन, और यही नाम आजकल जो है IUPAC नेम जो है वो आजकल इसका काम में लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द न्यू रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC। देखते हैं, दैट इज ईथेन 1,2 डायअमीन, राइट। When there is a bidentate ligand or the polydentate ligand, तो उस केस में मेटल के साथ में जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, it is forming a ring. This type of the ring compounds are called chelate rings. इनको बोलते हैं chelate rings हैं ये। और the chelate rings, chelate ring, these type of the ligands are which is forming the chelate rings, उनको बोलते हैं chelate ligands, while the process of the formation of the ring is called chelation. This is very important, chelation, chelate rings or the chelate ligands. If the ligand is bidentate or polydentate, it is form the ring compound with the metal, and these type of the ring compounds are the chelate rings. These type of the ligands which are forming the ring compound are called chelate ligands, while the formation of the ring is chelation यार, right। chelate rings जो होती हैं, जो chelation होता है, या हमारे पास में इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की स्टेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज कर देता है। इसी वजह से द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद द कीलेट लाइगैंड्स विल बी मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल जो है वो होंगे। और यहाँ अगर मैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करूँ तो देखिएगा 6 मेंबर्ड रिंग आपके पास में ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू द 5 मेंबर्ड, और 4-membered ring, 3-membered rings are not stable here. One more thing, if we'll just talk about 6-membered ring with double or triple bond will be highly stable due to the double or the triple bond. इनकी stability और ज़्यादा increase हो जाती है, बहुत strong जो है वो compound का formation होता है। More than 6-membered ring compounds भी आपके पास में stable नहीं है। क्यों नहीं है? More than 7 मतलब 6 मेंबर्ड होंगे, मतलब एटलीस्ट 7 मेंबर, ड्यू टू द टॉर्शनल स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा, और उस स्ट्रेन की वजह से 7 मेंबर रिंग जो है वो नहीं फॉर्म होती है। सो दीज टाइप ऑफ द लाइगेंड्स आर द चीलेटिंग लाइगेंड्स और द कीलेटिंग लाइगेंड्स। इट इज फॉर्म द कीलेट रिंग, कीलेट कंपाउंड का जो है वो फॉर्मेशन कर रही है, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी अगर आप एग्जांपल लेना चाहें आप जो है वो ले सकते हैं।
द एग्जाम्पल ऑफ द ग्लाइसिनेट ले लीजिए, वो भी आपके पास में, ऑक्जेलेट ले लीजिए, वो भी आपके पास में रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा विद द मेटल। ऑक्जेलेट की बात करूं, ये लीजिएगा C2O4 O माइनस, चलिए इधर बनाते हैं, दिस इज O माइनस एंड द O माइनस form the bond with the metal and it is forming the 5-member ring here, जो कि chelate ring है। The formation of the chelate ring is chelation while the compound is chelate compound and the ligand is chelate ligand. So these type of the ligands will increase the stability of the coordination compound, और ये हमारे पास में है chelate compounds के बारे में। और इसी के साथ में हमारा जो types of ligand का टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वन मोर थिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। साथ ही साथ में नेक्स्ट लेक्चर तक आप जो है वो कीलेट कंपाउंड्स को, साथ ही साथ में नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो आप ट्राई कीजिएगा इस लिस्ट को जो लिगेंड की हमारे पास में है इसे लर्न करने का, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल इन द नॉमेनक्लेचर। सारे के सारे लिगेंड्स की जो नेमिंग है वो आपके नॉमेनक्लेचर में काम आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, बाय।